Good morning, students. How are you? I think you are very fine. Dear students, today in the English class, I am going to teach you a lesson from supplementary book. Okay? And that lesson is what? A tiger in the house. That is in chapter 9 of supplementary book. All of you open chapter 9 from your supplementary book. So this is a chapter and that is written by Ruskin Bond. He was born on 19th May 1964 in UP, Uttar Pradesh. That means Ruskin Bond is an Indian writer. Okay? So let us know something about the writer or the author. He has written so many important books. Among the books I have written just two. Our trees still grow in Dera and a flight of pigeon. So these are the two important books. He has written so many stories for movies and TV shows, and let us see. First one, Saat Khoon Maaf. This is in Hindi. Junoon, that is also Hindi. Ek Tarashti, that is also Hindi. The Black Cat, The Blue Umbrella, these are English. So these are the movies and TV shows which are written by the author Ruskin Bond. Okay? So Ruskin Bond was very famous writer. Actually, we cannot say was because he is still alive. So Ruskin Bond is a famous writer. He has got or received, you can say, two important awards which is very much popular in India. Those are what? Padma Shri, Padma Bhushan. Two great awards of India, and that is received by our author of this chapter, The Tiger in the House. Who is that author? Ruskin Bond. And what are the awards? Padma Shri and Padma Bhushan. Let us move into the chapter. Character of this story, Timothy, a tiger cub. Okay, एक बाघ का बच्चा टिमोथी, ये है main character, and there are supporting characters and grandparents. You know, grandparents means Ruskin Bond's grandparents. Okay, and Ruskin Bond is there also in the story. Mahmud is the cook of the writer. Okay, Toto is the name of a monkey, and there is a puppy in the character. So let us move to the chapter. Timothy, the tiger cub, was discovered by grandfather in the Tarai jungle near Dera. देहरादून के करीब करीब तराई नाम का जो जंगल है उसमें उस जगह से मेरे दादाजी को एक बाघ का बच्चा मिला था जिसका नाम है टिमोथी. ओके. One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long, hiding among the intricate roots of a banana tree. एक दिन दादाजी जब जंगल के रास्ते में घूम रहे थे, कुछ दूर में वो खो गए. अपना जो झुंड है उससे थोड़ा दूर चले गए थे. ओके. और उसी समय में एक बरगद का पेड़ जो है उसका बहुत सारा जो जड़ होता है मिट्टी में लग चुका है, लग के बड़ा बड़ा हो चुका है. तो इस तरह जड़ के बीच में बहुत कठिन मतलब जगह में एक बच्चा को मिला जो कि 18 इंचेस लॉन्ग है, मतलब 18 इंचेस लंबा एक बाघ का बच्चा को मिला था. ओके. ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम. दादाजी क्या किए? उसको उठाए, बच्चा को घर में लेके आए. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. और दादाजी के जो जानवर की कलेक्शन है उनमें से यही एक अकेला बच्चा है जिसको जिंदा हो या मुर्दा हो कुछ ना कुछ मांस खाने को मिलता था. ओके. At first, the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmud. पहले तो इस बाघ का बच्चा को दूध पिलाया जाता था जिसको हमारा जो दादी जी है
वो टिमोथी नाम से पुकारती थी और उसको पहले पहले फीडिंग बॉटल में खिलाया जाता था। ओके, और हमारा जो कुक, खाना पकाने वाला मामूद, वही उसको खिलाते थे। बट द मील प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल टू बी फॉलोड लेटर बाय ए मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजियंस एंड रबिस। तो दूध जो है उसके लिए बहुत कठिन हो जा रहा था हजम करने के लिए, क्योंकि बाघ जो है मांसाहारी है, उनको अगर शाकाहारी के जैसा दूध पिलाओगे थोड़ा हजम कर पाएंगे, तो वो हजम नहीं हो रहा था। इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा मांस का जो चीज़, जो खाना जो है उसको खिलाया जाता था। क्या क्या? जैसे कि कॉड लिवर ऑयल, कच्चा कच्चा कुछ भी मांस हो, और धीरे धीरे बाद में उसको क्या दिया जाता था? कबूतर या तो खरगोश, इस तरह चीज़ों का मांस को दिया जाता था। टिमोथी was provided with two companions, टोटो द मंकी। टिमोथी का दो साथी था, एक तो टोटो है जो कि एक बंदर है, who was bold enough to pull the young tiger by the tail। और ये जो बंदर जो है इतना साहसी था, वो इस बाघ का बच्चा का पूंछ पकड़ के हमेशा उसको तंग करता था। एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। और उसके बाद टिमोथी, मतलब वो बाघ का बच्चा, जब गुस्सा उसका आ जाता था और वो बंदर के पीछे भागते थे, तो बंदर क्या करते थे? पर्दा के पीछे चढ़ के छुप जाता था। एंड ए स्मॉल मोंग्रेल पपी, और एक साथी था, वो है एक कुत्ता के बच्चा जो कि मोंग्रेल, मतलब एक किस्म का कुत्ता है, एक प्रजाति का कुत्ता है, उस तरह के कुत्ता के बच्चा एक था, वो भी टिमोथी का साथी था। ओके, फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर। और इस कुत्ता के बच्चा जो है, इसको भी दादाजी ने रास्ते के साइड से उद्धार किया था या तो बचाया था। तो यही है कि दादाजी के घर में एक बाघ का बच्चा जिसका नाम टिमोथी, उसका साथी था टोटो, एक मंकी, और उसका एक साथी था एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा जो कि मोंग्रेल प्रजाति का है। ये तीनों है, तीनों के बारे में अभी चर्चा हो। ठीक है। At first, Timothy appeared to be quite afraid of the puppy and darted back with a spring if it came too near। पहले पहले टिमोथी ये कुत्ता का बच्चा से बहुत डरते थे, ठीक है, और अचानक से छलांग मार के दूर चले जाते थे जब वो कुत्ता का बच्चा करीब करीब आता था। He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to ridiculously safe distance। वो जब कुत्ते का बच्चा सामने आता था तो अचानक से उसके करीब चले जाते थे और अपना सामने वाला जो शिकंजा है या तो अपना सामने वाला जो हाथ जो है उससे कुछ करने की कोशिश करते थे और अचानक पीछे आ जाते थे, जो कि सुरक्षित दूरी पे है। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। और अंत में क्या हुआ? इस पपी के साथ टिमोथी का दोस्ती हो गया और टिमोथी के पीठ में भी चढ़ने के लिए उस कुत्ते का बच्चा चढ़ते थे और टिमोथी कुछ नहीं बोलते थे, मतलब जो उसको चढ़ने देते थे। मतलब टिमोथी ने कुत्ते का जो बच्चा जो है, जो कि उसके पीठ में चढ़ते थे, उसको भी चढ़ने के लिए मंजूरी दे देते, मतलब दोस्ती बन गए। One of Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites। टिमोथी का जितना सारा खेल कूद है, मजा है, उनमें से एक है किसी के कोई अगर उनके सामने आ जाते थे तो अचानक से उनके सामने फटक से आ जाते थे और इसी तरह खेलने की कोशिश करते थे। और जब मैं दादाजी के पास जाता था घूमने के लिए, तब मैं इस टाइगर का जो बच्चा जो है, बाघ का बच्चा टिमोथी जो, उसका सबसे पसंदीदा दोस्त बन गया था मैं, क्योंकि मैं भी उसके साथ खेलना पसंद करता था। ओके, with a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me। उसका चेहरा जो है बहुत चतुर दिखने में है, उसका आंख भी चमकता था और इस तरह चेहरा लेके शिकार जैसे पकड़ते थे उस तरह धीरे 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 मेरे करीब आते थे। Suddenly making a dash for my feet, अचानक से मेरे पैर जो है, पैर में छलांग मारते थे। ओके, rolling over on his back and kicking with delight। और क्या करते थे? वो अपने पीठ के बल पे सो जाते थे और पैर को इधर उधर मारते थे आनंद में, मजा में। एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और वो मेरा एंकल्स जो है, घुटनी जो है पैर का, उसको भी
काटने की कोशिश करने के लिए एक्टिंग करते थे। प्रिटेंडिंग मतलब एक्टिंग करना, सचमुच नहीं करना। ओके, he was bit by this time, he was by this time the size of a full grown retriever। और अभी जब मैं लिख रहा हूँ, अभी क्या हुआ है, उसका चेहरा एक रिट्रीवर नाम का जो ये रहता है, एक प्रजाति का कुत्ता रहता है जो कि बहुत बड़ा होता है, शिकारी कुत्ता, उसका जैसा पूरा चेहरा हो गया उसका। And when I took him out for walks, people on the road would give us the white birth। और जब मैं इस बाघ का बच्चा मतलब टिमोथी को लेके रास्ते में चले जाता था, तो हर कोई देख के दूर दूर में चले जाते थे और उसके लिए रास्ता चौड़ा करके दे देते थे। When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him। और टिमोथी का ताकत इतना बढ़ गया, जब वो चेन को खींच के इधर उधर भागने की कोशिश करते थे, मुझे बहुत ताकत लगाना पड़ता था उसको पकड़ने के लिए, और बहुत कठिनाई आता था। His favorite place in the house was the drawing room, and he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off। उसका सबसे पसंदीदा जगह जो था वो है ड्राइंग रूम का सोफा, और उसमें वो अपने आप को बहुत आराम से अपने आप को बैठाते थे, और क्या करते थे, वहाँ पे थोड़ा अपना जो शरीर का जो आराम वो भी लेते थे, थोड़ा झुक के, जैसे कि हम लोग थोड़ा आधा सोए आधा बैठे लेते हैं। और अगर कोई उसको उस जगह से हटाने की कोशिश करता था तो नाक से बहुत आवाज़ निकालते थे, जैसे कि गुस्सा का आवाज़। Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat। ये शेर का जो बच्चा है टिमोथी, इसका आदत जो है बहुत साफ सुथरा आदत है, और क्या करते थे, अपना बिल्ली लोग जैसे करते हैं ना, तो बिल्ली लोग जैसे करते हैं, अपना जो पॉज जो है, अपना सिकंजा जो है, उसको भी साफ करते थे चाट चाट के। ओके, he slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning। वो टिमोथी जो है रात में हमारा जो कुक जो है उसका घर में रहते थे। ओके, और बहुत खुश रहते थे और बहुत खुश हो जाते थे जब उसको सुबह सुबह खोल दिया जाता था। नेक्स्ट, one of these days declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mamu's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes। तो इसी तरह एक दिन मेरा जो दादी जो है एक दिन अचानक से बोल दिए कि टिमोथी का चेहरा, टिमोथी का हाव भाव जैसे हो गया, तो हम लोगों को लगता है एक दिन मामूद के बिस्तर के ऊपर पे टिमोथी को देखा जाएगा, और टिमोथी को देखा जाएगा, और मामूद का कपड़ा वगैरह और जूता वगैरह वहीं पड़े रहेंगे, मामूद नहीं रहेंगे। इसका मतलब है दादी जी डरती थी कि टिमोथी का चेहरा इस तरह हो गया, इतना हिंसक हो गया कि वो कभी भी मामूद को मार के खा सकते हैं और उसका नाम निशान मिटा सकते हैं, और मामूद का कपड़ा और जूता ही रह जाएगा। ओके, सो दिस इज द एप्रीहेंशन ऑफ राइटर्स ग्रैंडमदर, मतलब लेखक का दादी का ये एक डर था, शंका था कि टिमोथी का चेहरा जिस तरह वाला हो जा रहा है तो वो एक दिन मामूद को भी मार के खा सकते हैं। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him। तो इस तरह कभी नहीं हुआ, मामूद को खाया नहीं, मगर उसका उम्र जब 6 महीना हो गया तब उसका अंदर में या तो बाहरी हिस्सा में कुछ चेंजेस आया, बदलाव आया। He grew steadily less friendly, और धीरे धीरे वो इतना दोस्ती जैसा व्यवहार करने लगता था जैसे पहले, वो दोस्ती जैसा व्यवहार अभी नहीं रहा, वो थोड़ा बदल गए, लेस फ्रेंडली बन गया। फ्रेंडली मतलब दोस्त जैसा, लेस फ्रेंडली मतलब कम दोस्ती। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog। जब मेरे साथ वो टहलने जाते थे तो अचानक से वो क्या करते थे, एक भागता हुआ बिल्ली या तो किसी का पालतू कुत्ता उसके पीछे अचानक से भाग पड़ते थे। Sometimes at night we would hear frenzied crackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda। कभी कभी हम लोग रात में बहुत अनोखा सा चिल्लाने का आवाज़, जैसे कि मुर्गी लोग करते हैं, इस तरह आवाज़ सुनाई देता था
हमारा पोल्ट्री हाउस था वहाँ से, और सुबह जाके देखता था पंख पड़ा हुआ है बरामदा में। ओके, टिमोथी हैड टू बी चेंज्ड अप मोर ऑफन। टिमोथी को ज़्यादा से ज़्यादा चेन से बांध के रखा जाता था। ओके, एंड फाइनली व्हेन ही बिगैन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विथ व्हाट लुक्ड लाइक विलेनस इंटेंट, ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू जू। एक दिन अचानक से ऐसा हुआ, महमूद को पीछे पीछे महमूद को जैसे मारने के लिए, जिस तरह होता है विलेन जैसा एटीट्यूड लेके, दुश्मन जैसे एटीट्यूड लेके महमूद के पीछे पीछे चल पड़ा था। और उसी समय मेरे दादाजी ने तय कर लिया कि इसको अभी ट्रांसफर करना है किसी चिड़ियाघर में, किसी चिड़ियाघर में इसको भेजना है। Reserving a first-class compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. तो दादाजी ने एक ट्रेन का पूरा कमरा बुक कर लिया ताकि वहाँ पे और कोई ना आ पाए, और क्या किए, लखनऊ में जाके जो चिड़ियाघर के जो अफसर लोग हैं उन लोगों से बातचीत किए ताकि टिमोथी को वहाँ पे रखा जाए। और वो लोग खुशी खुशी तैयार हो गए, क्योंकि एक अच्छा खासा खिलाया पिलाया एक बच्चा जो कि बाघ का बच्चा उसको दान में मिल गया, और इतना पालतू है। तो जू का अथॉरिटी जो है, चिड़ियाघर के जो कर्तृपक्ष है, वो लोग बहुत खुश हो गए। About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. तो 6 महीने के बाद जब टिमोथी को जू में ट्रांसफर कर दिया गया लखनऊ में, तो उसका 6 महीने बाद तो दादाजी को ऐसा मौका हुआ कि वहाँ पे रिलेटिव जो है लखनऊ में, उनका घर में उसको जाना पड़ा। तो उसी समय में दादाजी ने सोचा चलो टिमोथी को देख के आते हैं। चिड़ियाघर में छोड़ के गए थे 6 महीने पहले, वो किस तरह हालत में है। I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Dera. तो मैं दादाजी के साथ नहीं गया था, और बाद में जब मुझे सुनाई दिया, जब देहरादून में जब लौट के आया मैं, तो बाद में मुझे सुनाई दिया कुछ इस कहानी। क्या कहानी? Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. तो मुझे ये कहानी बताया गया, दादाजी ने मुझे बताया था कि किस तरह क्या हुआ था। तो दादाजी जब लखनऊ गए थे टिमोथी को देखने के लिए चिड़ियाघर में, तो चिड़ियाघर में जिस पिंजरा में रखा गया था टिमोथी को, उस पिंजरा के सामने दादाजी गए थे। ओके, द टाइगर वॉज देयर, और बाघ वहाँ पे थे। क्राउच्ड इन ए कॉर्नर, एक कोने में बैठा हुआ था। फुल ग्रोन एंड विद ए मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड कोट, पूरा चेहरा अभी बड़ा हो गया और देखने में बहुत सुंदर, जैसे कि स्ट्राइप रहता है, मतलब काला और पीला दोनों मिलके जो स्ट्राइप रहता है, उस तरह स्ट्राइप उसका शरीर में आ चुका है। हेलो टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। टिमोथी कैसे हो, ऐसे बोल के दादाजी ने पिंजरा के जो बार रहता है, जो लोहे का रॉड रहता है, उसके अंदर से अपना हाथ को घुसा दिया। ओके, द टाइगर अप्रोच द बार्स, मतलब बाघ जो था अंदर में बैठे हुए थे, वो भी करीब आ गए, पिंजरा के जो बाघ जो है उसके सामने आ गए। एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और उस बाघ के मुंडी के दो साइड में दादाजी ने हाथ थपथपाने लगे, और बाघ भी ऐसे करने दे दिए। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फोरहेड एंड tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. दादाजी ने क्या किए, दादाजी उसके माथे के ऊपर में धीरे धीरे थपथपाए, उसका कान को थोड़ा खींचे, और जब वो थोड़ा गुस्सा में आवाज करने लगे तो दादाजी ने उसके मुंह में मार दिए। जैसे कि इस तरह आदत पहले था, टिमोथी को ऐसे ही घर में किया जाता था, दादाजी ऐसे ही करते थे, उस तरह आदत से उसको किए। He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. वो क्या किए, दादाजी को ऐसे करने दिए, ठीक है। और जब दूसरा एक पिंजरा जो कि सामने रखा हुआ है, वहाँ पे एक चीता जो था, वो जब धीरे धीरे इसके तरफ मतलब देखने लगे या तो झांकने लगे, तब वो छलांग मार के पीछे तरफ भाग के जा रहे थे। बाकी समय दादाजी के पास ही वो खड़े थे।
Grandfather shooed the leopard away and the tiger returned to lick his hands. दादाजी ने क्या किया, सामने जो पिंजरा में जो कि चीता इसको डरा रहे थे, दादाजी उसको थोड़ा डराए, किसको, उस चीता को, सामने वाला जो खाचा है, हिश हिश इस तरह थोड़ा डराए, और तब जाके ये जो बाघ जो दादाजी का हाथ चाट रहे थे फिर से आ गए सामने दादाजी के सामने और हाथ चाटने लगे। मतलब उस पिंजरा में जो चीता था उसको देख के डरते थे और दादाजी को देख के नहीं डरते थे, दादाजी के पास आते थे। But every now and then the leopard would rush at the birds and he would slink back to his corner. बारी बारी में वो चीता भाग भाग के दौड़ के इस बाघ के तरफ आ रहे थे और ये जो बाघ पिंजरा में है वो बारी बारी में पीछे तरफ जा रहे थे। A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. बहुत सारे लोग भीड़ हो गए क्योंकि दादाजी एक बाघ को प्यार कर रहे हैं और बाघ भी खड़े खड़े दादाजी को हाथ चाट रहे हैं। ये देखने का चीज है, सब कोई भीड़ हो गए और दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं बहुत दिन के बाद। इसको देखने भी बहुत सारे लोग भीड़ जम गए और उसी समय में उस भीड़ में से रास्ता निकाल के एक जन सामने तरफ आ गए और दादाजी क्या कर रहे हैं इसको पूछने लगे। ओके, और जो सामने भाग के आए हैं, जो सबको हटा के आए, वो है कौन, कीपर। मतलब इस पिंजरा में जो बाघ को रखा गया है उसको देखने वाले, उसको देखभाल करने वाले, खाना खिलाने वाले जो है, ठीक है, इसको कीपर कहते हैं, रखवाले जो किसको कहते हैं, वही आए। तो दादाजी को पूछने लगे, क्या पूछने लगे, आई एम व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप क्या कर रहे हैं। दादाजी ने जवाब क्या दिया, आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने बोले मैं तो टिमोथी से बात कर रहा हूँ। व्हेन आर यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago, क्या आप पहले नहीं थे 6 महीने पहले जब मैं ये टिमोथी को इस चिड़ियाघर में मैं दान करके गया था, आप शायद नहीं थे, ये मेरा ही बाघ है, मैं इसको ऊपर प्यार कर रहा हूँ, आप 6 महीने पहले नहीं थे शायद। आई हैव नॉट बीन हियर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज कीपर। और जो रखवाले करने वाले वो थोड़ा चौंक गए और बोले नहीं मैं 6 महीने पहले नहीं था, मैं बहुत दिन से नहीं था, या एक ठीक बताए, प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, कृपया आप बातचीत चलाते जाइए, ठीक है। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। मगर आप कैसे इसको छोड़ रहे हैं, मैं तो बहुत कोशिश किया था, इसको टच ही नहीं कर पाया और बहुत गुस्सा वाले हैं। ठीक है, आप बातचीत करते रहिए। Why don't you put him somewhere else? suggested grandfather. दादाजी ने बोले अरे आप लोग इसको दूसरा पिंजरा में क्यों नहीं डालते हैं? That leopard keeps frightening him. वो जो सामने वाला पिंजरा में चीता है इसको डराते हैं। I will go and see the superintendent about it. मैं अभी जाता हूँ और इस चिड़ियाघर के जो मालिक है, जो कि अफसर है, उनको मैं बताता हूँ इसके बारे में कि इस पिंजरा के सामने उस चीता को रखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारा जो बाघ जो टिमोथी है ये डर जा रहा है। Grandfather went in search of the superintendent of the zoo, but found that he had gone home early, and so after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. दादाजी ने बहुत कोशिश की है सुपरिटेंडेंट से मुलाकात करने के लिए, मगर सुपरिटेंडेंट जल्दी घर में लौट गए थे, इसलिए बहुत देर तक इधर उधर घूमने के बाद वो फिर से टिमोथी के पिंजरा के सामने आ गए ताकि उसको अलविदा कहे और उनसे विदा लेके घर चले। It was beginning to get dark, और उसी समय में शाम भी हो चुका था। It had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes. He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. तो दादाजी ने करीब 5 मिनट तक इस बाघ को क्या किए थे, थप्पड़ मारे, उसको थपथपाए, शरीर में हाथ डाले, और उसी समय में दूसरा एक रखवाला जो है वो दादाजी को देख लिए, दादाजी को ऐसे करते हुए देखे, ओके, और डर के मारे में देख रहे थे। Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. दादाजी को उसी समय में पहचान आ गया क्योंकि यही ये रखवाला है जब टिमोथी को दादाजी ने छोड़ के गए थे। ये जो रखवाला, ये जो कीपर जो है उसी समय में थे, ओके। दादाजी को पहचान में आ गया कि यही शायद जानते हैं टिमोथी को, और कोई नहीं जानते हैं। You remember me? said grandfather. दादाजी ने पूछा अरे तुम मुझे पहचानते हो? Now why don't you transfer Timothy to another cage
away from this stupid leopard. अरे आप लोग ये चीता जो सामने रखे हैं, ये बाघ के पिंजरा के सामने चीता को क्यों रखे हैं? या तो ये बाघ को दूसरा जगह में ले जाओ, इस चीता के सामने नहीं रखना है। और ये लेपर्ड जो है वो बुद्धू है। अब कीपर का जवाब सुनो, क्या बताते कीपर? बट सर, स्टेमर्ड द कीपर, मतलब थोड़ा हकलाते हुए बोले, अरे सर क्या बोलूं, इट इज नॉट योर टाइगर, ये आपका बाघ नहीं है। I know, said grandfather. I realize he is no longer mine. हाँ, मैं जानता हूँ, हाँ मेरा अभी नहीं है, मैं तो दान कर चुका हूँ। But you might at least take suggestion or two from me. अरे मैं तो दान कर चुका हूँ, फिर भी मुझसे तो एक दो सलाह ले ही सकते हो ना, क्योंकि मैं ही दिया था इस बाघ को। I remember your tiger very well, said the keeper. He died 2 months ago. महाशय, आप जो बाघ को दिए थे यहाँ पे, मैं उसको अच्छा तरह से पहचानता हूँ। 2 महीने पहले वो मर चुके हैं। Died? Exclaimed grandfather. दादाजी ने चौंकी बनाई, मर गए? Yes sir, of pneumonia. हाँ, उसे निमोनिया हुआ था, एक बीमारी हुआ था। This tiger was trapped in the hills only last month. पहाड़ से इस बाघ को पिछला महीने में इसको फांद से इसको मतलब ये किया गया था, मतलब पकड़ा गया था। ओके, इसको पकड़ा गया था फंदा से। एंड ही इज वेरी डेंजरस, और ये जो बाघ जो है बहुत खतरनाक है। पहाड़ से इसको फंदा से पकड़ा गया था और ये बहुत खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। दादाजी और कुछ बोल नहीं पाए, क्या बोलेंगे वो भी सोच नहीं पाए। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विथ इंक्रीजिंग रिलिश। और बाघ, वो जो बाघ टिमोथी जिसको दादाजी ने समझ रहे थे, वो बाघ अभी भी दादाजी का हाथ चाट रहे थे, ठीक है, और बहुत प्यार से चाट रहे हैं। ग्रैंडफादर टूक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज टू विथड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। दादाजी उस पिंजरा से हाथ तो निकाले, मगर निकालते निकालते उसका एक युग जैसे चले गए, मतलब बहुत धीरे 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 उस हाथ को निकाले। With his face near the tigers, he mumbled, "Good night, Timothy." और वो धीरे धीरे क्या किए, अपना फेस को, अपना चेहरा को उस पिंजरा के सामने लेके गए और थोड़ा धीरे धीरे दादाजी ने बोले, गुड नाइट टिमोथी। एक्चुअली में टिमोथी नहीं था, दूसरा बाघ था। और दादाजी का सौभाग्य था कि दादाजी को कुछ नहीं किए, वो दादाजी को कोई कुछ चोट नहीं पहुंचाए। And giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo. और दादाजी गुड नाइट बोलते हुए वहां से तुरंत निकाल दिए, और जिसको देखते हुए जो कीपर जो था, जो रखवाली करने वाला, वो भी थोड़ा चौंक गए। अरे क्या है, क्या बुद्धू है ये, अचानक से किस बाघ को अपना बाघ समझ के ऐसे कर रहे थे, कुछ ना कुछ हो जाता, तो वो भी सोच नहीं पाए किस तरह से हो गए। सो दिस इज द स्टोरी। The story ends here. Okay, the story is slightly abridged. थोड़ा इधर उधर चेंज किया गया है। Okay, abridged मतलब वही है। So I think you have understood the story and you like this story. So try to read the story once again aloud with right pronunciation. Okay, and at the same time try to understand what the story tells. Okay, there will be so many short questions from here in your final examination. So listen the story carefully and learn the story carefully. Okay, watch the video carefully, try to read the story and try to understand. Okay, I think you will abide by my advice, and for today I want to take adieu. Bye bye all of you, have a nice day.